Hello everyone, welcome to our channel, The Kraken. So, from the title, you have the idea that what we are going to discuss. So, I am Sumant. Let's start the session for today. So, here you all the concepts related to the in detail will be clear, and including this, what the additional thing we need to talk. Because if you are here, then you will get something additional for your preparation, so that no, you will feel confident. So let's learn it. So in detail, obviously, net demand term liability. So we have already discussed the last 5 parts regarding all the topics related to the CR and SLR, and this in detail is also a part of that. So here we will go some deep into this demand liability and term liability, and also other term liability, and also other demand term liability. Including this, we will also cover the exempted list. Exempted list is very important because in the next case study we will get to see that how to solve this question, because if balance sheet has been given, then you need to also know which of the terms need to be exempted while considering the NDTL. Right, while considering the NDTL for the calculation of the CRR. Got it? So I have mentioned all the things that what we are going to cover. So if you like to know, then watch it completely and also follow all the sessions. ठीक है? So चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं. So ये रहा, देखिए थोड़ा कॉन्सेप्चुअल रहेगा. So hopefully आपके लिए इतना कस से हम लिखे हैं. So irrespective of the handwriting, just learn the concepts, and if you want, then I will also pronounce the sentence. Sorry, I will also read the sentence, so you can also make your own good handwriting notes as well. Okay, so otherwise you can, for reference, you can take the screenshot. Otherwise you can also save this and repeat more on. ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं. NDTL जैसे भी आपको पता है, NDTL का मतलब हमारा क्या है? दिस इज द नेट, जो लोग डिमांड एंड टर्म लायबिलिटी. Got it? So net demand matlab this is the summation of demand liability and also term liability. So the whole combination will be considered as NDTL. Okay, why this NDTL is needed? Just refer the previous videos, that is CRR and SLR. I'll just say you for briefly. So some parts of this NDTL will be considered for the CRR and for the SLR, right? So some percentage, like now RBI is maintaining CRR is 4%. Got it? So that's why NDTL is very important. And so here we will discuss only related to the NDTL, that is what this actually means. So NDTL is demand liability plus term liability. So this is demand and this is term, and also other demand term liability of the scheduled commercial banks. Got it? So it's used to compute the CRR, SLR and LF, that is liquidity adjustment facility. Got it? So this is the function, we can say objective of the NDTL. Got it? So next one is liability. In case of our financial system, liability system is divided into 4 parts. What are the? First one is demand liabilities. So this is demand. So second one is term. So demand means, I'll also tell you just brief idea, those who are watching this, so that you will also get some idea that actually what we are talking about. So demand means जब भी whenever the customer demands, we need to repay back. On demand, we need to repay back. That means whenever they want, we need to repay back. We'll go deeply in the next slide. Just wait for some time. So term liability, that means all these liabilities will have some time period. Got it? Some particular defined time period. Okay. So okay. So next one is borrowings. So if you have borrowed something from other bank or other financial institutions, so that will also be included in this other liability. So that will be like borrowings also. So next one is other miscellaneous liabilities. So some other liabilities will be there which will be like miscellaneous. There will be a mix up of many liabilities. Okay. So got it? So there are 4 So normally for NDTL we will consider this two, NDTL, DL plus TL. ठीक है? So चलिए नेक्स्ट वाला सेशन देख लेते हैं. ओके, सो देखिए ये रहा हमारा क्या, we will go deeply, I told you.
सो डिमांड वन, ठीक है। सो डिमांड वन, टेबल वन डिमांड। सो जब भी कस्टमर डिमांड करेगा, सो ये है हमारा बैंक, ठीक है, और ये हमारा है महाशय जी। सो ये लोग ये यहाँ पर जमा किए हैं, पहले जमा किए हैं, ठीक है, जैसे कोई भी। सो जब भी वो डिमांड करेंगे, वी नीड टू रिपे बैक, सो इट कैंट decline. That's why the CRR and SLR system is there to provide the money and to fulfill the demand of the customer whenever they want, because this is their money and cash after all. Got it? So for example, we will also need to know what are the examples of the DL, what are the liabilities which we will consider as the demand one. So first one is so here the examples, so we'll just cover one, so you hopefully will got some idea, ठीक है। so current accounts, so this is saving bank accounts, got it। so current accounts all the deposit accounts, ठीक है। so normal जो डिपॉजिट अकाउंट होता है, दिस इज कासा, करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट, ठीक है। सो करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट में मतलब क्या होता है, कस्टमर आके कस्टमर जो डिपॉजिट करते हैं, तो हमें तो पता है कि जब भी वो डिपॉजिट करते हैं, जब आते हैं अपना पेमेंट लेने के लिए, हम उनको देना पड़ता है, ठीक है। नीड अगर बैलेंस अवेलेबल है, वी हैव टू गिव बैक, ठीक है। सो मार्जिन हेल्ड अगेंस्ट एलओसी एंड गारंटीज। सो जो भी मार्जिन आपका, एलओसी मतलब क्या है, आपका लेटर ऑफ क्रेडिट। सो इसका जो मार्जिन होगा वो विल भी आपका, वो भी हमारा हो जाएगा आपका डिमांड में। सो नेक्स्ट है अगर ये, सो नेक्स्ट है बैलेंस इन ओवरड्यू फिक्स्ड डिपॉजिट। दैट मीन्स फिक्स्ड डिपॉजिट तो हमारा आपका टर्म में जाएगा, तो इसमें बैलेंस इन ओवरड्यू मतलब क्या होता है, देखिए ओवर जब फिक्स्ड डिपॉजिट मैच्योर हो जाता है, ठीक है, दैट मीन्स कभी कभी आफ्टर 12 मंथ जो भी आपका टाइम पीरियड रहता है, 12 मंथ रहता है आपका, 24 जो भी आपका कस्टमर ने डिडक्शन दिया होगा, सो उस टाइम पीरियड पकड़ लेते हैं हमारा 12 मंथ है। सो आफ्टर 12 मंथ दैट फिक्स्ड डिपॉजिट विल बी समथिंग मैच्योर, ठीक है। सो अभी अभी सिस्टम ऐसा है कि ऑटो रिन्यू हो जाता है, पर नॉर्मली इफ इट हैज टू समथिंग, कोई एक स्कीम है, स्पेशल स्कीम देखिएगा, तो फिर हमारा जैसे एक था समृद्धि कोई एक अकाउंट था, सो वहां पर क्या होता है ना, ये 400 डेज के लिए था। सो आफ्टर 400 डेज दिस द स्पेशल स्कीम एफडी कैन बी रिन्यू, ठीक है, ऑटो रिन्यू कभी नहीं होता है। सो इन दैट केस जब भी कस्टमर आता है, वी हैव टू गिव बैक। सो जब ओवरड्यू हो जाता है फिक्स्ड डिपॉजिट, सो इन दैट केस ऑल द बैलेंसेस विल बी कंसीडर्ड एज द डिमांड लायबिलिटी, बिकॉज़ व्हेनेवर द कस्टमर विल कम टू अस, वी नीड टू गिव देम बैक द ओवरऑल अमाउंट ऑफ दैट फिक्स्ड डिपॉजिट। गॉट इट? So this is the one. Next one is cash certificates and also cumulative and recurring. Obviously RD is also having some time period, so we'll also not consider this one. So RD will be this one, RD will be considered as the time liability. Got it? Because I know recurring deposit also having some time liability, so it will be time liability particular time period with respect to the FD. So we can say also overdue in case of RD। जब RD आपका मैच्योर हो जाता है, नॉर्मली क्लोज होकर कस्टमर के अकाउंट में चला जाता है, ठीक है। सो ये आपका TL में जाएगा RD वाला केस, ठीक है। सो आउटस्टैंडिंग TT, सो ये वाला केस है आपका आउटस्टैंडिंग TT मीन्स टेलीग्राफिक ट्रांसफर, और जो भी हमारा टेलीग्राम ट्रांसफर जो TT रेट होता है, उसके केस में जो भी आउटस्टैंडिंग रहेगा दैट विल बी कंसीडर्ड एज द DL। और MT दिस इज द मेल ट्रांसफर। सो नेक्स्ट है डिमांड ड्राफ्ट। जो भी डिमांड ड्राफ्ट में हमारा रहेगा, डिमांड ड्राफ्ट से कस्टमर आते हैं, सो वी नीड टू गिव विद देम बैक, सो दैट्स आल्सो ऑन डिमांड। सो दिस इज द डिमांड ड्राफ्ट आल्सो इंक्लूडेड इन द डिमांड लायबिलिटी। गॉट इट? सो ऑन क्लेम डिपॉजिट्स, सो जो भी ऑन क्लेम डिपॉजिट से ये आपका डिमांड लायबिलिटी क्यों होता है, जैसे कि हमारा बैंक का जो RBI का रूल है, आई थिंक सो 10 ईयर तक हम इसको वी नीड टू प्रिजर्व ऑल द अमाउंट। सो ऑन क्लेम डिपॉजिट्स वी नीड टू प्रिजर्व अप टू द 10 years। सो ड्यूरिंग दैट पीरियड इफ एनी कस्टमर विल कम विथ प्रॉपर वैलिड प्रूफ, वी कैन से proof, then we need to give the deposit back to that customer or to that deserving person. So next है credit balance in the cash credit. So see here credit balance in the cash credit मतलब क्या होता है, देखिए ये आपका कैश क्रेडिट हो गया, ठीक है। सो यहाँ पर कस्टमर ने 1 लाख का लिया है, पर उसका क्रेडिट अभी आपका आरबीआई का ऐसा रूल हो गया है कि अगर इफ एनी भी कस्टमर इज हैविंग कैश क्रेडिट अकाउंट, OD अकाउंट, एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, देन ही इज नॉट अलाउड टू ऑपरेट द करेंट अकाउंट। सो अभी हमने बहुत मास क्लोजिंग ऑफ करेंट अकाउंट हो रहा है एज पर द RBI गाइडलाइंस, ठीक है। सो करेंट अकाउंट को मेंटेन नहीं कर सकता है, सो दैट वो क्या करेगा, आपका कैश क्रेडिट अकाउंट पे ही विल डू द ट्रांजैक्शन, ऑल द ट्रांजैक्शन इन द कैश क्रेडिट अकाउंट, राइट। सो इन दैट केस इफ एनी लाइक ही हैज डिपॉजिटेड समथिंग 1,20,000, so this 20,000 is the extra money,
ऑब्वियसली कैश क्रेडिट इज द लाइबिलिटी फॉर दैट कस्टमर एंड एसेट फॉर अस फॉर बैंक, ठीक है, और लाइबिलिटी फॉर द कस्टमर। बट लाइबिलिटी कितना है आपका, हमारा कस्टमर का लाइबिलिटी ये है 1 लाख का। सो ये जो 20,000 है, ये जो 20,000 एक्स्ट्रा है, दिस इज द एसेट ऑफ कस्टमर। दैट मीन्स इसमें कस्टमर का जो है हक है, कस्टमर का राइट है ना इसके ऊपर। तो ये जो 20, वो तो 1 लाख को डिमांड नहीं कर सकता है ना, ठीक है, पर ये जो 20,000 को, ये 1 लाख को कौन डिमांड कर सकता है, आपका बैंक कर सकता है। और ये जो 20,000 को हु विल डिमांड, दैट विल बी डिमांडेड बाय द कस्टमर। गॉट इट? इन केस ऑफ द कैश क्रेडिट, ओके, चलिए एक सेकेंड। ओके, सो दिस इज द डिमांड लाइबिलिटी। सो और भी कुछ पॉइंट्स है, दैट डिपॉजिट्स व्हिच आर held as security for advances, okay, deposits which are held as security for advances which are payable on demand। so कुछ कुछ अगर डिपॉजिट्स है तो we are taking, जैसे कि हमारा एडवांस के लिए डिपॉजिट्स कैसे होता है, सी अब अगर हम कोई लोन देते हैं और उसके लिए आपको फॉर एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, हम लाबोर्ड को पकड़ लेते हैं, लोन अगेंस्ट लाबोर्ड को तो पता होगा आपको, लोन अगेंस्ट बैंक ओन डिपॉजिट्स, ठीक है। So in this case हम क्या करते हैं, we are giving some advances, some advance amount, and how much we are taking 1% extra of that fixed deposit. So we'll consider all those things in another sessions particularly related to that. But in case of Labrador, what we are doing, we are taking the fixed deposit receipt, राइट, वहां पर डिपॉजिट हो एज ए सिक्योरिटी रहता है फॉर गिविंग दिस एडवांस। और भी कुछ केसेस रहता है जहां पर हम LIC का भी लेते हैं और कुछ कुछ का लेते हैं, पर मैं जस्ट गिविंग विद द फिक्स्ड डिपॉजिट का, ठीक है। सो यहाँ पर अगर ऐसे रहता है कि कस्टमर ने अपना एडवांस को पे कर दिया, गॉट इट। सो इन दैट केस ये जो फिक्स्ड डिपॉजिट है तुरंत उसका डिमांड के ऊपर आ गया ना, कस्टमर कभी भी अपने डिमांड में करके मांग सकता है कि मेरा डिपॉजिट मेरे को दे दो। सो इन दैट केस दैट विल बी आल्सो, सी केस वाइज भारी करता है, ठीक है। सो इन दैट केस ये हो जाएगा आपका क्या, डिमांड लाइबिलिटी, ठीक है। सो मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द बैंकिंग सिस्टम्स शुड बी शोन अगेंस्ट लाइबिलिटी टू द अदर्स। सो अगर कोई भी मनी है दैट इज कॉल एंड शॉर्ट नोटिस के तरफ हमें मिला है फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द बैंकिंग सिस्टम्स, उसको वी नीड टू शो एज द लाइबिलिटी ऑफ अदर्स, ठीक है। सो चलिए नेक्स्ट वाला जो है आपका, ऑब्वियसली DL तक आपका कंसेप्ट अभी तक क्लियर हो गया होगा। सो कुछ नहीं है, जस्ट नीड टू रिमेंबर, ठीक है, जस्ट ट्राई टू रिलेट, इसमें यू नो नीड टू रिमेंबर, जस्ट ट्राई टू रिलेट द थिंग्स वॉट एवर वी आर डूइंग इन द बैंकिंग सिस्टम यूजुअली, गॉट इट। सो ये रहा हमारा क्या है, हमारा दैट इज टर्म liability, got it। so payable otherwise than on demand, and so payable so without except the demand, so it will be also payable after a fixed period of time period। so जो भी आपका टाइम पीरियड के लिए रहा है, जैसे कि पकड़ लेते हैं फिक्स्ड डिपॉजिट आपका 1 ईयर है, so this is within that 1 period, this is the term liability, got it। so fixed deposit, कैश सर्टिफिकेट्स, सो ऑन कम्युलेटिव एंड RD, सो इसके लिए पर्टिकुलर आपका टाइम पीरियड रहता है, दैट्स व्हाई द TL। सो फिक्स्ड डिपॉजिट क्यों है, यू आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, ठीक है। सो स्टाफ सिक्योरिटी डिपॉजिट्स, सो जो भी आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट है स्टाफ का, वो भी आपका एक टाइम पीरियड के लिए होता है, सो दैट इज आल्सो। सो मार्जिन हेल्ड अगेंस्ट LOC इफ नॉट पेबल ऑन डिमांड। सो ये देखिए पहले हमारा केस था कि जिसमें पेबल ऑन डिमांड था, इफ एनी मार्जिन we have earned against the LOC and that's one clause is there, it's not payable on demand, then that margin will be considered as the TL, ठीक है। so deposits held as security for the advances that are not payable on demand, so till the advance will be clear, ठीक है, till the advance will be cleared, all the demands are not payable on demand, all the deposits will not payable on demand, so it will be also considered. That means all the deposits will be held with the bank till the advance amount will be cleared. So we can say if the advance is 1 year period of time, then all the deposits will be in the bank's custody till 1 year, that's a particular time period, so that's why this is the term liability as well, ठीक है। so चलिए, so यहाँ पर थोड़ा एक कंट्रोवर्सी आपका आ जाएगा कि ये जो डिपॉजिट है कस्टमर के लिए तो लाइबिलिटी, कस्टमर का एसेट है, ठीक है, सो बैंक का लाइबिलिटी है, सो उस केस में हम पकड़ सकते हैं, ठीक है। और एडवांस जो है हमारा
एडवांस जो है हमारे बैंक के लिए क्या है, आपका एसेट है, कस्टमर के लिए आपका लायबिलिटी है। गॉट इट। सो दो फैक्टर है, सो उसके लिए सो दीज आर द नेक्स्ट वन है आपका टर्म लायबिलिटी। अभी तक यहाँ पर पता चल गया, डिमांड अगर आपको पता है देन यू कैन ऑल्सो रिलेट द टर्म वन। ठीक है, जस्ट रिमेंबर, हम कुछ एक्स्ट्रा में गए हैं पर जस्ट ट्राई टू रिमेंबर ओनली वन सिंपल कंसेप्ट क्वेश्चन से आएगा, ज्यादा नहीं, क्योंकि आपको सॉल्व करना है सीआर रिलेटेड क्वेश्चन, पर ये कंसेप्चुअल है आपका रिलेटेड। ठीक है, सो जो भी उसका टाइम पीरियड रहेगा उसका एक रहता है कॉन्सेप्ट, आप समझ जाएगा, रिलेट करेगा, यू कैन इजीली अंडरस्टैंड। ओके, सो नेक्स्ट है आपका देखिए अदर डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। सो अदर डिमांड टाइम लायबिलिटी के पास एक एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पर है आपका मिसलेनियस लायबिलिटी। ठीक है, सो क्या क्या जाता है, इंटरेस्ट एक्रूड ऑन डिपॉजिट, जो भी हमारा रहता है, बिल्स पेबल, जो भी हमारा बिल्स पेबल रहता है वी नीड टू पे, सो ये हमारा शॉर्ट टर्म लायबिलिटी रहता है। ठीक है, सो ऑन पेड डिविडेंड्स, जो भी ऑन पेड डिविडेंड्स है वी नीड टू पे बैक, अभी तक पे नहीं किए हैं पर अभी तो पे करना होगा ना, डिविडेंड नीड्स टू बी पेड। ठीक है, सो ये अनपेड, ये आपका एग्जांपल से बस इसको और जो टर्म्स को याद रखिए, सो दैट्स गुड। ठीक है, सो अभी तक आपका लायबिलिटी पार्ट तो खत्म हो गया है, बस उसी का एक पार्ट है, एक टर्म है। ठीक है, सस्पेंस ये बस आपका एक्स्ट्रा है, सो दैट यू कैन डिफरेंशिएट बिटवीन द डिमांड लायबिलिटी, टर्म लायबिलिटी व्हिच विल बी कंसीडर्ड फॉर द एनडीटीएल एंड मिसलेनियस बैलेंस अगर दिया होगा देन वी विल नीड टू सब्सट्रैक्ट फ्रॉम ऑल द टोटल लायबिलिटी। ठीक है, आपको मैं नेक्स्ट लास्ट में बता दूंगा। सो नेक्स्ट है देखिए सस्पेंस अकाउंट बैलेंसेस, जिसमें होगा क्या है, अमाउंट ड्यू टू अदर बैंक और पब्लिक्स। सो सस्पेंस अकाउंट में क्या होता है, जो भी हमारा कोई अदर बैंक और कोई पब्लिक्स अगर बाई चांस डिपॉजिट किया है और उसका अकाउंट में डिपॉजिट नहीं हो पा रहा है, वेयर वी आर गोइंग टू डिपॉजिट, इट विल बी डिपॉजिटेड इन द सस्पेंस अकाउंट। सो ये हमारा हो जाएगा आपका क्या, मिसलेनियस में। सो नेक्स्ट होता है मार्जिन मनी ऑन बिल परचेस्ड एंड discounted and also gold borrowed by banks from the accrued। ठीक है, सो इस केस में भी आपका जो बिल परचेज और बिल डिस्काउंट होगा उसमें भी जो भी आपका मार्जिन रहेगा दैट विल बी आल्सो कंसीडर्ड एज द मिसलेनियस लायबिलिटी। सो दीज आर जस्ट एग्जांपल्स। सो ये जो है वेरी इंपॉर्टेंट है, वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस, नॉट नीड टू अंडरस्टैंड, जस्ट ट्राई टू रिमेंबर दिस, otherwise you can able to solve this। So if you have the complete clarity regarding the liability, so this is okay। So first one exempted क्या क्या होता है, जो भी हमारा बैलेंस शीट आइटम है, फर्स्ट वन है हमारा शेयर कैपिटल्स एंड रिजर्व्स एंड क्रेडिट बैलेंस इन द पीएल अकाउंट। सो ये सब को हम एग्जेम्प्टेड हो गए, ये हमारा लाइबिलिटी में जाता है पर ये एग्जेम्प्ट होगा फ्रॉम एनडीटीएल कैलकुलेशन। ठीक है, सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये सब को याद रखिए, वी नीड टू सब्सट्रैक्ट। ठीक है, सो नेक्स्ट है आपका रिफाइनेंस अवेल्ड फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जैसे आपका नाबार्ड रहा, सभी रहा, कोई भी आपका फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से अगर कोई रिफाइनेंस मिला है तो फिर दैट विल आल्सो एक्सक्लूडेड फ्रॉम दिस इन डिटेल कैलकुलेशन। देन एक्सेस प्रोविजन मेड ऑन टैक्स पेबल्स, सो जो भी आपका टैक्स पेबल करना था हमें, उसके ऊपर हमने क्या किया, एक्सेस प्रोविजन कर लिए हैं, मतलब प्रोविजन जितना जरूरी था 100 रुपया का जरूरी था एंड वी हैव डन द प्रोविजंस ऑफ 150, दैट मींस ये जो 50 रुपया है ना दैट विल बी एग्जेम्प्टेड। ठीक है, ये जो एक्स्ट्रा 50 रुपीज प्रोविजन हमने किए हैं मेड ऑन टैक्स पेबल्स, वो हमारा हो जाएगा एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द एनडीटीएल। गॉट इट। सो ऑन एडजस्टेड अमाउंट ऑफ क्लेम रिसीव्ड फ्रॉम डीआईसीजीसी ईसीजीसी इंश्योरेंस कंपनीज, सो जो भी हमारा ऑन एडजस्टेड मतलब जो भी आपका इंश्योरेंस कंपनी का क्लेम रहता है वो अगर ऑन सॉल्व है, अभी तक आपका ऑन एडजस्टेड उसको हमने सेटलमेंट नहीं किए, वो भी हमारा एनडीटीएल के साथ इंक्लूड नहीं होगा। गॉट इट। सो नेक्स्ट है एग्जेम्प्टेड लायबिलिटी फ्रॉम द एनडीटीएल, उसके पार्ट और है इंटर बैंक टर्म डिपॉजिट्स। सो जो भी हमारा इंटर बैंक, जैसे आपका एसबीआई ने बीओबी के साथ किया है, ठीक है, सो अगर बीओबी को पकड़ ले, सो एसबीआई का जो है टर्म डिपॉजिट यहाँ पर है, ठीक है, टर्म डिपॉजिट्स। सो यहाँ पर बीओबी के लिए जो टर्म डिपॉजिट क्या है, आपका लायबिलिटी है, क्योंकि जब भी एसबीआई चाहेगा उसको देना पड़ेगा। सो लायबिलिटी अबव 15 डेज, सो इसका जो टाइम पीरियड है क्या है आपका 15 डेज टू अबव अप टू 1 ईयर रहना चाहिए। 15 डेज से ज्यादा आ गए अप टू 1 ईयर तक जो रहेगा दैट विल बी आल्सो एग्जेम्प्टेड फ्रॉम दिस एनडीटीएल। सो इंटर बैंक जितना भी आपका टर्म डिपॉजिट ये भी रहेगा आपका एनडीटीएल में एग्जेम्प्टेड रहेगा, ठीक है, नॉट इंक्लूड होगा। सो नेक्स्ट है द लायबिलिटी अराइजिंग ऑन अकाउंट ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ लिमिट्स अंडर बैंक्स एसेप्टेंस फैसिलिटी। सो जो भी आपका लायबिलिटी रहेगा बैंक्स एसेप्टेंस फैसिलिटी के अंदर यूटिलाइजेशन लिमिट जब हो जाएगा, जो भी लायबिलिटी रहेगा वो भी आपका एग्जेम्प्ट रहेगा। ठीक है, सो ये वाला पॉइंट को याद रखिए, बैंक्स एसेप्टेंस फैसिलिटी के अंदर जो भी लिमिट यूटिलाइजेशन रहेगा वो भी आपका लायबिलिटी से आपका एनडीटीएल कैलकुलेशन से एग्जेम्प्ट रहेगा। ठीक है, सो इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट है कि ऑल द एससीबी क्या है हमारा, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स,
ठीक है, ऑल शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम मेंटेनिंग सीआरआर ऑन द फॉलोइंग। सो जितना भी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक है वो भी उन सबको एग्जेम्प्ट किया गया है कि सीआरआर इन सब लायबिलिटी के ऊपर ना मेंटेन करने के लिए। सो कौन सा है, फर्स्ट है हमारा लायबिलिटी टू द बैंकिंग सिस्टम। लायबिलिटी जो भी आपका लायबिलिटी है बैंकिंग सिस्टम के लिए इन इंडिया, आज कौन सा स्कीम के अंदर, आपका क्लॉज डी सेक्शन 42 सब 1 आरबीआई एक्ट 1934। सो ये जो क्लॉज डी ऑफ सेक्शन 42(1) दैट इज आरबीआई एक्ट 1934 के अकॉर्डिंग जो हमारा लायबिलिटी रहेगा टू द बैंकिंग सिस्टम्स इन इंडिया। ठीक है, सो आज कंप्यूटेड मतलब कुछ लायबिलिटी ये जो क्लॉज के अंदर आपका कंप्यूट होगा, सो वाला आपका क्या होगा, एग्जेम्प्ट होगा। सो नेक्स्ट आपका क्रेडिट बैलेंस इन एससीयू दैट इज यूएस डॉलर अकाउंट्स। सो जो भी आपका क्रेडिट बैलेंस रहेगा आपका इस अकाउंट्स एससीयू अकाउंट्स और यूएस डॉलर अकाउंट्स, सो उसमें भी आपका ये एग्जेम्प्ट रहेगा। ठीक है, फॉर द सीआरआर कैलकुलेशन में इसको इंक्लूड नहीं किया जाएगा। ठीक है, सो दैट मीन्स ये सब एग्जाम करने के बाद जो हमारा एनडीटीएल बच जाएगा ना, उसी के ऊपर ही हम सीआरआर रहेंगे, नहीं कि जो भी हमारे पास है सबके ऊपर डाल दो। इसीलिए वाला जो रूल्स है थोड़ा यू नीड टू नो। ठीक है, सो ट्रांजैक्शंस इन और ये वाला भी आपका ये रहा आपका थर्ड वाला, ये क्या है आपका जो एससीबी जो पॉइंट है वो इसको इंक्लूड नहीं कर सकता इन केस ऑफ सीआरआर कैलकुलेशन। क्या है ये, ट्रांजैक्शंस इन कोलैटरलाइज्ड बोरोइंग एंड लेंडिंग ओब्लिगेशन सीबीओएल, जो सीबीओएल के अंदर जो भी ट्रांजैक्शन हुआ है कोलैटरलाइज्ड बोरोइंग्स एंड लेंडिंग ओब्लिगेशंस विथ सीसीआईएल, जो सीबीएलओ ट्रांजैक्शन किसके साथ हुआ है, सीसीआईएल के साथ जो हुआ है उसको भी एग्जेम्प्टेड है हियर। ठीक है, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एलटीडी, सीसीआईएल का ये वाला फुल फॉर्म है। जस्ट आपके लिए की पॉइंट्स याद रखिए, सीबीएलओ सीसीआईएल के साथ जो भी ट्रांजैक्शन है वो एससीबी जो है हमारा शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक उसको अपना जो सीआरआर कैलकुलेशन के लिए इंक्लूड नहीं कर सकता है। गॉट इट। सो डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ देयर ऑफशोर बैंकिंग यूनिट्स ओबीयूसी। सो जो भी आपका डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी रहेगा, देखिए नॉर्मली हमें पता है कि जो भी आपका डिमांड टाइम लायबिलिटी उसको हमें इंक्लूड करना चाहिए, पर यहाँ पर है जो भी आपका डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी रहेगा आपका, उनका जो है जितना भी बैंक का है ऑफशोर बैंकिंग यूनिट्स का, उनका जो डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी इसमें इंक्लूड नहीं होगा फॉर द सीआरआर कैलकुलेशन। गॉट इट। सो ये जो 4 पॉइंट अच्छा है और जो है हमारा एग्जेम्प्टेड उसको भी याद रखिएगा। सो इसके साथ ये कैसे हमारा काम आएगा, देखिए जो हमारा एनडीटीएल रहेगा उसका फाइनल कैलकुलेशन क्या रहेगा पता है आपका, टोटल लायबिलिटी। ठीक है, आप सबको ऐड कर सकते हैं, पर अगर टोटल लायबिलिटी दिया है उसमें हम सब्सट्रैक्ट क्या करेंगे, एग्जेम्प्टेड वन, exempted liability and also minus miscellaneous liability। ठीक है, सो ये रहा एक फॉर्मूला। और एक ये जो इक्वल मतलब क्या, इससे हमें क्या मिलता है, इससे हमें मिलता है डिमांड लायबिलिटी प्लस टर्म और टाइम लायबिलिटी। ठीक है, सो ये हो जाएगा हमारा नेट डिमांड एंड टाइम और टर्म लायबिलिटी। ठीक है, सो ये हम कैलकुलेशन करेंगे। एग्जेम्प्टेड आप जानेंगे, सो आप टोटल दिया होगा आपको, एग्जेम्प्टेड पता होगा, देन यू कैन इजीली डिफरेंशिएट ऑल दोस थिंग्स एंड मिसलेनियस पता होगा, देन ओनली हम इसको डिफरेंशिएट करके ये सब को माइनस कर सकते हैं और हमें मिल जाएगा आपका नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी। अगर इससे मिल गया इसके बेसिस पे हम सीआरआर कैलकुलेशन कर सकते हैं और जो एसएलआर कैलकुलेशन कर सकते हैं, क्योंकि सीआरआर का कुछ परसेंटेज अगर 4% दिया है और एनडीटीएल आपका 100 है, इसका 4% कितना है आपका, 4% कितना होगा आपका, 4 रुपया। 4 रुपया आपको उसको सेव करना होगा। ठीक है, और 100 दिया है, अगर 20% बोला है आपका एसएलआर मेंटेन कर लिए, दैट मीन्स आपका कितना, आपका 20% बोला है 10 है, आपका 20 रुपीज एसएलआर आपका मेंटेन होगा। सो ये रहा आपका बेसिक एग्जांपल, होपफुली यू गॉट इट, कैसे हम कैलकुलेशन करते हैं इसको। ओके, सो पर्सनली इफ आई टॉक अबाउट मी, my all concepts regarding the CRR and SLR has been cleared while making sessions for you guys. So I have tried my best to make you understand. So hopefully you got some idea regarding all those things, and just give your feedback as well.
how's your CRR and SLR series, and if any suggestions, then you are very welcome to put your suggestions in the comment section, so I will consider in the upcoming sessions. So all those suggestions will be also useful, so that it will be improved, right? So you know, we all are the learners, so we all learn. So I am also learning and also make you to learn the things, so in the easiest way, in the easiest possible way. So hopefully आपके लिए पहला कुछ ना कुछ आपके जो प्रिपरेशन में एड ऑन किया होगा, आपके कॉन्सेप्ट में एड ऑन किया होगा, मेरा तो खुद का किया है। सो पर्सनली आई एम ओके विद दैट। सो चलिए, थैंक्स फॉर वाचिंग, जो लोग आप देख रहे हैं यहाँ तक। सो थैंक्स फॉर वाचिंग, थैंक्स फॉर सपोर्टिंग। चलिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए अगर आपको अच्छा लग रहा है, एंड ऑल्सो शेयर विथ योर फ्रेंड्स जो लोग आपके प्रिपरेशन कर रहे हैं। एंड फिर मिलते हैं टिल द नेक्स्ट सेशन, और एक सेशन के साथ फिर मिलते हैं, और ये वाला सेशन के साथ एक हमारा केस स्टडी क्या होगा आपका फॉलोड बाय होगा, तो उसको भी आप देखिएगा। एंड हम कोशिश कर रहे हैं और भी कुछ सेशन लाने के लिए। सो होपफुली लेट्स सी कितना हो सकता है, पर हो तो रहा है धीरे धीरे, ठीक है। सो टिल द नेक्स्ट सेशन, अपना ख्याल रखिए, जस्ट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड कीप लर्निंग। एंड चलो मिलते हैं, सी यू सून गाइस, बाय बाय।